So, hi everyone and good evening. We have Piyush with us, All India rank 8 in CLAT 2023. This guy also scored a rank 419 in CLAT 2022 and he was very disappointed that day. I remember कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा. He always wanted to be in NLS. He wanted to have a fantastic rank in CLAT. And when last year उसके सारे friends का group went to NLS and all the other national law schools. Wo, he had a choice to get into NLIU Bhopal, and that day was a day when he was confused कि मैं NLIU Bhopal drop out करूँ नहीं करूँ क्या करूँ. He was almost set to drop the college, but finally I think he took admission in NLIU Bhopal और NLIU के साथ रह के पहले 2 साल उसने पूरी पूरी प्रिपरेशन करी थी, got into NLIU Bhopal, and in the last 6 months he prepared for CLAT again, and he's finally here. A story of sheer hard work and determination. So and perseverance, obviously. So it's over to you. I think a very inspirational story. क्योंकि पीयूष और मेरी स्टोरी आज से 2.5 साल पहले चालू होती है when I got a phone call from one of our academic counselors. तो वहां से चालू होती है that there is this guy from Jhansi and he wants to prepare. So but very happy for you पीयूष. 6 महीने पहले जब अपन पापा के साथ मिले थे, पापा बोलते थे ये लड़का मेरा क्या करना चाह रहा है, 419 रैंक लाने के बाद भी बोलता है कि मुझे क्लैट फिर से लिखना है. बट आई थिंक यू हैड इट इन योर माइंड कि मुझे तो मेरे बैचमेट था, जो मेरा पिछले साल का बैच था, उनके साथ ही मुझे आगे जाके पढ़ना है. बट वेरी इंस्पिरेशनल, वेरी इंस्पायरिंग एंड कंग्रेचुलेशंस. यू वर वेटिंग फॉर दिस डे, यू वर वेटिंग फॉर दिस कि तेरा इंटरव्यू कभी होगा. आई नो सिंस अ लॉन्ग 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 टाइम एंड finally you are here. So how is it feeling, Piyush? I think what is the feeling? Finally you have made it. Sir, it feels great, sir. Sir, I remember first time we talk on, if it was the date of 18th May 2020, I remember because that day we and you talked first for the very first time, and Karanji sir was the intermediator between two of us. So from there it started, and for last 6 months back after the CLAT result, like I remember the results came at somewhere at 10 o'clock, somewhere at the PS 10 p.m. and I called you at 10:30. I said sir दोबारा देंगे. आप बोलते हो कि कितनी रैंक आई तेरी? I said sir 419. आप कहते इस पे तो पीयूष तू रुक, अभी तो अच्छा कॉलेज मिलेगा, तू मेरे से भोपाल में आके मिलना. तो I said okay sir. तो फिर हम 2 दिन बाद मिलने भी आए मैं आपसे फिर, and we had a long conversation regarding this. तो फिर in the end हम आए कि NLIU ले लेंगे, लेकिन एक बार CLAT दोबारा लिखेंगे. So from there, so this was the whole journey, sir. मतलब it basically divided into two parts. The first was before that CLAT 2022 and then after NLIU. After post NLIU thing. So I think a lot of credit of this should go to your last year वाला तेरा पूरा batch और group as well. मतलब sir, उनके दिमाग में उनका सिलेक्शन हो गया and therefore you are also like मेरे को भी वहीं जाना है, बस खत्म करो, बहुत हो गया. सर उधर तो मतलब सबके साथ ही गया था, वो सबका हुआ है, तो फिर इट्स ऑलवेज देयर कि हाँ तुम्हारा भी क्यों नहीं हुआ फिर उस टाइम पे. तो फिर वो रहता है हमेशा से अंदर कि एक बार तो और दे सकते हैं. How's the family feeling? Good? सर मैंने उनको अब तक फेस टू फेस तो नहीं मिला हूँ, क्योंकि हमारे घर में फंक्शन है तो सब लोग बाहर हैं अभी, तो मैंने लेकिन बता दिया तो खुशी लग रहे थे सब लोग एटलीस्ट कॉल पे. तो खुशी लग रहे थे. तो तेरी जर्नी है पीयूष पूरी आई थिंक गुड 2.5 years की है ना. एंड एक बार क्लैट लिखा, 419 रैंक आई, NLIU भोपाल में एडमिशन ले लिया, 7 साल से प्रिपरेशन करी, wrote all those tests once again because concepts तो पहले क्लियर हो ही गए थे, and then here again made it to rank 8. So कितना टफ था ये, या कितना नहीं था, आसान था, कितना टफ था ये? Sir, more like if whenever those who are going to watch this interview or maybe some other interviews as well, I can at least say for my rank, that is rank 8 that I got, that it's not only my rank that I've got, it's the like contribution of multiple people that have come and also the luck factor that I've played in. So अगर ऐसा जो जीके मैं whole time मैंने मतलब I was very lucky at multiple points of time my whole preparation. तो मैं NLIU में गया, मेरा रूममेट बहुत अच्छा आया, वो इतना चिल था कि वो रूम में ही नहीं रहता था, तो फिर तो मेरे को रूम पूरा खाली पढ़ने के लिए मिलता था. मतलब ऐसे बहुत कम है हमारे पूरे हॉस्टल में कि आपको रूम मिले पढ़ने के लिए, सब लाइब्रेरी जाते हैं पढ़ने, लेकिन वो मेरा रूममेट इतना अच्छा था कि वो मोस्ट ऑफ द टाइम रूम में नहीं रहता था, और रहता था तो बहुत शांत रहता था. लाइक ही वाज वेरी कंसिडरेट, तेरा तो हो जाएगा, मेरा नहीं हुआ लेकिन तेरा तो हो जाएगा. तो वो वैसा था कि आई वाज वेरी लकी कि वैसा रूममेट मिला. फिर दोस्त भी वहाँ पे अच्छे मिले. फिर इस बार सुपर 30 में भी काफी बैचमेट्स अच्छे थे, तो हम लोग का पूरा ग्रुप था, मान्यू का, प्रियम वदा, दिव्यांश, सब लोग मतलब हम साथ में किए.
हाँ। तो उधर से लेके वो पूरा भावेश था उधर, सारे लोग थे मतलब उधर। तो पूरा इस टाइम पे मैं बहुत लकी था कि अच्छे लोग मेरे साथ रहे पूरे टाइम पे। और प्लस फिर वो इन द एग्जाम पे भी बहुत लक फैक्टर सर मेरे साथ रहा। तो अगर वो नहीं होता तो रैंक नहीं आती, एनएल्स प्रोबेबली हो जाता, लेकिन रैंक्स नहीं आती वो वाली। तो लाइक अगर वो फीफा वाला क्वेश्चन आया था उसमें, तो आई रिमेम्बर 18th को वो पेपर आया हमारा, 17th को रात में आई वाज वाचिंग क्रोएशिया वर्सेस मोरक्को सेमीफाइनल। तो थर्ड प्लेस मैच था वो, और वो उधर कमेंटेटर कफाला सिस्टम बता रहा था कुछ तो। और नेक्स्ट दिन वो पेपर में आ गए 2 क्वेश्चन उसके। आई वाज की ठीक है। मेरे दोस्तों ने पूछा तुझे कैसे आता था, आई सेड मैंने ही कहा था तुम्हें मैच देख लो, तुम ही कह रहे थे रिवाइज करना है, और मैंने कहा, ठीक है। हाँ, तो तो यू टोल्ड मी द अदर डे कि वो जो फीफा वाला क्वेश्चन था वो मेरे को सर वो उनकी कमेंट्री सुन के हाँ, वो ऐसे बन दो गया तीन वो। थे। ये तो बस हाँ। एक ही जगह है, मतलब 2-3 जगह ऐसा बहुत लकी था कि मैंने कुछ सुनते सुनते सुन लिया, वो आ गया, मतलब हम्म। बात ही बात में ऐसे ही हम बात कर रहे हैं फालतू ही, और लेकिन वही चीज आ गई। And I think your GK score would be one of the highest scores in the country. दो हाँ, वो राइट नाउ ऐसे आई थिंक इट्स, सेक्शनली बताते नहीं है, बट आई थिंक तेरा जीके स्कोर बहुत हाई है। हाँ आई गेस मेरा 26.25 है। आई गॉट सम 7 रॉन्ग इन इट आई गेस। हम्म। 26.25 in this year's GK is a हाँ, kind of a very high score. So मतलब मतलब मेरे Piyush, I दोस्तों mean, में जितना what are पता है। your thoughts for students who want to prepare? I'm sure in fact बहुत लोग अभी फर्स्ट ईयर अपने कॉलेज में जाएंगे, they would they would want to write the examination again in, let's say, different type of colleges. तो मुझे उनके लिए what they should be doing. A lot of people would be starting their journeys right after 10th. तो उनके लिए and then यार एक इतने बड़े एग्जामिनेशन में ना टॉप करना इज लाइक इट्स टफ, मतलब ये बिल्कुल आसान नहीं होता. So what are those things that you would always and always recommend them? Let's say the top 5 things that they should be doing and something that has worked for you. So the only thing that I can suggest, and most of the thing I'm going to say is already being suggested by other people, especially you guys in the YTs and classroom also. But I can give you only one thing at this: keep read continuously. Don't read reading and don't stop giving marks. This is a thing that will keep you going always. Like मेरे साथ ऐसे ही था कि लास्ट 6 मंथ्स में आई नो कि मेरे को टाइम नहीं मिलेगा जीके करने का, और मैंने जीके नहीं भी करी, मैंने उस पर रिलाई किया ही नहीं, क्योंकि मैं कर ही नहीं सकता था, पॉसिबिलिटी नहीं थी। द ओनली थिंग दैट वी कैन रिलाई ऑन इज की रीडिंग करते रहो कंटिन्यूसली। और वो एटलीस्ट इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग कमांड ओवर रीडिंग, यू हैव अ स्ट्रॉन्ग कमांड ओवर 66% ऑफ द पेपर। Hmm. सो स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग यू हैव अ वेरी गुड चांस ऑफ क्लियरिंग इट। इवन इफ यू 100 क्वेश्चंस में तुम्हारे रीडिंग पे एज है, तो यू विल फिनिश इट मच फास्टर देन अदर पीपल। So even this year the paper was on the lengthier side. Like if I'm not wrong, at least 8 pages were more than the last year paper. Hmm. So paper Hmm. was lengthy, and people who were able to do at least the reading portion of the paper, like 100 questions, they were always at the edge. जिनका स्कोर नहीं आया, थोड़ा बहुत रीचेज रह गया उनका, इसलिए क्योंकि उन्होंने आरसी वाला पार्ट था वो छोड़ दिया। तो इन द एंड क्योंकि क्यूटी और सीए में तो मिला के ऑलमोस्ट सबका सेम ही स्कोर है वो, तो वो जितना स्कोर होना था उस पर वो ये सिर्फ हुआ मुझे है। बता, लाइक लुकिंग एट दिस एग्जामिनेशन कॉल क्लैट, मतलब वो काफी रीडिंग इंटेंसिव पेपर लिखता है एंड पेपर देख के लगता है दैट यू नीड टू हैव फैंटास्टिक इंग्लिश. आपकी लैंग्वेज पे बहुत ज्यादा आपको कमांड होना चाहिए. यू नीड टू कम फ्रॉम अ वेरी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. पीपल कमिंग फ्रॉम लेसर इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड्स आर नॉट एबल टू क्रैक दिस एग्जाम, ऐसा जनरल परसेप्शन है. समथिंग दैट यू वांट टू टेल दीज पीपल, लाइक आई एम श्योर तो झांसी से है, वहां पे कोई ऐसा कोई इंडिया के टॉप नॉच स्कूल से नहीं है. वुड बी वन ऑफ द बेटर स्कूल्स ऑफ झांसी, वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स ऑफ झांसी, बट स्टिल जैसा लोग परसीव करते हैं इस एग्जामिनेशन को, यार ये बहुत टफ है, इसकी इंग्लिश अच्छी होगी तो ही क्रैक होगा. I have started getting a feeling like I was अभी some time back I was talking to Sahil as well. So he's from Agra who kind of scored a rank too. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं है. I mean you can kind of work hard towards the examination and then keep working hard, और तुम्हारा एग्जाम, तुम्हारी रीडिंग स्पीड इंप्रूव हो जाती है, तुम्हारा कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव हो जाता है, तुम्हारा इन्फ्रेंसेस का पूरी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव. वो आई मीन व्हाट डू यू थिंक ऑन दिस, मतलब somebody coming from a lesser English medium background वो कैसे इस पूरे एग्जामिनेशन को ले. सर आई रिमेम्बर मैंने 2 साल पहले वही 18th में समथिंग उसी के अराउंड डेट के आगे पीछे मैंने पहली बार हिंदू रीड किया था, एंड आई टुक समवेयर 5 hours टू जस्ट रीड एडिटोरियल वाला पेज पूरा वो। सो और फिर मैंने अपने दोस्तों से पूछा तुम्हें कितना टाइम लगता है, तो दे सेड कि यार आधा घंटा 40 मिनट्स 1 hour मोस्ट लग जाता है। आई वाज लाइक यार 5 टाइम ज्यादा टाइम लगता है मेरे को। हाँ. तो वहां से मैंने शुरू किया था। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि मैं भी उसी इंग्लिश बैकग्राउंड से आता हूँ जिसपे मोस्ट ऑफ द पीपल जो देख रहे हैं वो उस पर like बिलोंग very करते important होंगे। for everybody to know this and to understand this that he said कि जब उसने पहली बार हिंदू पढ़ा था, that's 2.5 years back, he took 5 years हाँ, to reach that one editorial का page, and it is all about perseverance कि आप लगे रहो लगे रहो लगे रहो. और yeah, kind of over to you Piyush, आप बताओ. तो Yes.
करेक्ट सर। तो बस वहां से, लेकिन वो वहां से फिर छोड़ा नहीं उसको रीड करते करते, तो आज तो मतलब इतना है, वहां से रीड करते करते आया तो वो हो जाता है। लाइक इट्स समथिंग, हाँ इट्स ट्रू कि क्लैड में आपकी इंग्लिश होना अच्छी जरूरी है। इफ यू डोंट हैव यू विल बी लाइक लैगिंग बिहाइंड योर कॉम्पिटिटर्स। सो यू नीड टू हैव, बट इट्स नॉट समथिंग कि अगर तुम्हारा बैकग्राउंड नहीं है या कुछ नहीं है तो तुम कर नहीं पाओगे डेवलप। लाइक ए स्किल, लाइक 3-4 months कंटिन्यूस परसिवरेंस, यू विल बी एबल टू डेवलप दैट स्किल कि तुम भी जल्दी कॉम्प्लीट कर पा रहे हो। तो दैट्स इट। और सर मेरी तो इस लास्ट 6 मंथ में सिर्फ यही एबिलिटी थी कि बस मैं रीड जल्दी करता था। तो बस उसी पे, और मैंने लास्ट क्या, आई रिमेम्बर कि मेरे को 29 नवंबर मेरा, हम लोग के मिड सेमेस्टर एग्जाम थे एनएलआई में, 29 से 9 नवंबर तक। लेकिन मेरे को 28 को आई वॉज डायग्नोज विद चिकन पॉक्स। तो मेरे को घर आना पड़ गया, वो वहां से 28 को मैं निकला, फिर मैं जब तक रिलीज हुआ सब कुछ मतलब रिकवर हुआ तब तक 9th हो चुकी थी। तो फिर बस मेरे पास ऑलमोस्ट एक ही वीक बचा था। अब वो एक वीक में जीके तो मैं कर नहीं सकता था। आई वाज लाइक कि न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, तो आई लाइक उस पूरे 6 दिन में मैंने 5 से 6 न्यूज़पेपर रोज पढ़ता था मैं। तो मेरी पूरी स्ट्रेटेजी इसी पे थी कि बस जल्दी आगे पेपर सॉल्व कर देना पूरा। ये 100 क्वेश्चन वाला तो अपने एंड पे देख लेंगे, बाकी जो होगा वो देखेंगे। तो हाँ, कि ऐसा नहीं है कि वो डेवलप नहीं होती, वो इट्स लाइक डेवलप हो जाती है टाइम टू टाइम। और यही चीज तुम्हें सबसे ज्यादा मदद करती है, क्योंकि जब पेपर सॉल्व करते हो तो यही इस चीज पे स्कोरिंग होती है वो। सो यू से तो कि रीडिंग को बहुत बहुत ज्यादा अगर अपन इंप्रूव करें, बिकॉज अल्टीमेटली वहां जाके आपको रीड करना ही है। आई मीन इफ यू आर वीक विद रीडिंग यू हाँ विल नॉट बी एबल टू क्लियर, मतलब यू आर नॉट गिविंग योरसेल्फ इवन अ चांस टू क्लियर द एग्जामिनेशन। सर, कोई चांस नहीं है। मतलब चांस मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है अपने पूरे फ्रेंड सर्कल में जिनका भी स्कोर थोड़ा भी कम रहा है उनका, इसलिए कि वो रीडिंग वाले सेक्शन में अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए। तो वो जब जब मैंने देखा है कि जिनका सीआर में पूरा मतलब वो होता है, आपने भी एबिलिटी की स्किल की बात करी, वो डेवलप होती है वो। तो सीआर में भी वही है कि आई नो एटलीस्ट 5-6 पीपल सर जिनके 30/30 स्कोर है सीआर में, इंक्लूडिंग मी। तो वो हो जाता है, वो मतलब उस पर कुछ होता नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है ऐसा डेवलप करते हुए, मुझसे भी अच्छा लोगों ने किया है, बहुत बहुत काफी करते हैं लोग। तो वो तो हो जाता है सर, लाइक बस छोड़ना नहीं होता उसको, टाइम टू टाइम करोगे हो जाता है वो। ठीक है। रिवर्स रिवर्स क्वेश्चन पीयूष नाउ, व्हाट डू यू थिंक क्लैट एस्पिरेंट्स who want to get into top notch colleges should not be doing? तुमने देखा होगा यार, ये गलतियां सर नहीं मत देखा अपने आसपास के लोग को करते हुए, और दीज आर थिंग्स व्हिच आई वुड क्लियरली से कि इनको ये नहीं करना चाहिए। सर एक तो कट ऑफ पे बहुत ज्यादा रिलाय नहीं करना चाहिए कि थोड़ा बहुत भी इस ईयर का कट ऑफ है, लोग बस बहुत इस पे हो जाते हैं। या तो कैटेगरी वाइज कट ऑफ, मतलब स्टेट वाइज कट ऑफ, कैसे भी कट ऑफ पे ऐसा बिलीव करके नहीं जाना चाहिए। लाइक डोंट मेक द अरिथमेटिक्स द मेन फोकस ऑफ योर प्रिपरेशन की 2 नंबर कम है इस रैंक पे तो ये हो जाता है, तो इतना ही लंबा लाने हैं बस। द पेपर इज फॉर द होल 150 मार्क्स, नॉट द 93-94 मार्क्स की इस पे मेरी कैटेगरी वाइज पे हो जाएगा कुछ भी, मतलब वो कट ऑफ पे तो ध्यान देके प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए, पूरा 150 पेपर को एज अ होल लेके करनी चाहिए। दैट्स द वन थिंग मैंने देखा है लोगों का काफी फॉल होता है इस वजह से। तो दिस इज द वन थिंग। सेकंड सर की रीडिंग नहीं छोड़नी चाहिए कभी भी, वो तो प्राइम है, मतलब द होल फोकस शुड बी ऑन द रीडिंग। द दिस इज द लाइक यू कैन गो इवन स्टैटिस्टिकली, मैंने कहा था 66% पेपर तो रीडिंग ही है। तो इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग कमांड ओवर इट, 66 आपका तो सिलेबस वहीं पे हो गया। और थर्डली सर क्यूटी की प्रैक्टिस नहीं छोड़नी चाहिए। इवन दिस ईयर द क्यूटी वाज हार्ड, 3 सेट्स लोग कह रहे थे बहुत मुश्किल आया, लेकिन एक सेट तो बहुत पॉसिबल था वो, जो सॉल्व हो जाता वो मीन एवरेज वाला, वो सबने सॉल्व किया ऑलमोस्ट, जिसने का भी स्कोर थोड़ा हाई है उसने किया है वो सॉल्व। तो वो 5 तो आराम से हो जाता उधर। तो अगेन वो प्रैक्टिस करते रहोगे तो 0 से अच्छा 5 है वो एटलीस्ट वहां पे। तो ये तीसरा। और सर फोर्थ की जो मॉक्स है उस पर इतना रिलाय नहीं करना चाहिए, मॉक्स के स्कोर पे, क्योंकि वो ऊपर नीचे जाते हैं। तो बट इट डजेंट डिपेंड कि आप पूरा उस पर मोटिवेट हो या डिसमोटिव बहुत ज्यादा उस पर डिमोटिवेट हो जाओ कि स्कोर नहीं आ रहा है। सो दिस। एंड फिफ्थ इज सर मेंटल बहुत जरूरी होता है, मेंटल प्रेजेंस आपकी कि आप पेपर कैसे अटेम्प्ट करोगे, कि वो लोग पैनिक नहीं होना होता है वहां पे। सो दिस इज अ थिंग यू तो ये नीड टू डेवलप पैनिक, की। अभी अभिनव से भी पूछ रहा था कि पैनिक नहीं होना, तो हाउ डू यू डू दिस? आई मीन पैनिक नहीं सर कैसे होते वो हैं? पैनिक होना तो काफी नेचुरल होता है, तो सर हाउ डू यू नॉट पैनिक? सर व्हेन यू नो कि आप पैनिक होने वाले हो, तो जब आप पैनिक होगे तो आप पैनिक नहीं होगे, इन द सेंस कि आपको पता है, एक्सपेक्टेड है कि ये तो कुछ तो होगा उधर ऊपर नीचे। तो जब आपको ये पहले से पता है तो जब होता है तो आप थोड़ा कंट्रोल में रहते हो कि हाँ ये तो मुझे मालूम ही था, तो क्या नया होगा इधर। सो इवन दिस ईयर की हम मुझे मालूम था कि जीके तो आएगा ही, ऐसा कि नहीं आता होगा वो। तो लाइक वो होता है कि आपको पता है कि क्लैट थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल रहेगा। इनफैक्ट मैंने मतलब अपने दोस्तों में भी हम लोग बात करते तो हम लोगों ने पता नहीं अपना डायलॉग ही बना लिया कि अनप्रिडिक्टेबिलिटी इज द प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ द क्लाइंट, कि नेक्स्ट ईयर भी वो अनप्रिडिक्टेबल ही आएगा। तो जब तुम्हें पता ही है कि अनप्रिडिक्टेबल आएगा तो फिर जब आ गया तो क्या बात होगी फिर, तो तो उसको मतलब प्रेडिक्ट करने तुम्हारी मत ही जाओ, एक्सपेक्टेड। उसको प्रेडिक्ट करने मत ही हाँ, जाओ। हाँ 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 हम लोग तो मतलब देख के गए थे, हम लोग पूरे दोस्तों में हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि जीके तो आना ही वैसा है, कुछ भी हाँ कर लो।
तो हाँ फिर हम लोग को जब देखा भी कि जीके नहीं भी बन रहा है और थोड़ा बहुत बन रहा है नहीं बन रहा, तो हम लोग पहले पहले कुछ नहीं हुए, हम तो खुश थे कि जितना बन गया उतना ही बहुत है। हाँ, कि बाकी से तो उतना भी इतना नहीं भी नहीं बनना। सोच। हाँ। हाँ, हम्म। उतना भी नहीं बन रहा, फिर वो उतने बनने में वो 26 लग गए, वो इतनी खुशी में मतलब कॉन्फिडेंस में कि हाँ इतना तो आ गया ना, हम्म। तो उतने में वो 26 तक चला गया उसको वो। What was your routine like, Piyush, in the last many months? I mean, alongside NLIU करना तो टफ हो ही गया होगा, obviously. सर And एनएलआई में तो रूटीन तो सर कुछ होता नहीं है, मतलब 4 बजे सो रहे हैं, सुबह 8 बजे क्लास के लिए उठते हैं, फिर वो जाते आते फिर 9 साढ़े 9 से क्लास शुरू होती है उधर, एक क्लास होती है, फिर मैगी खाने चले जाते हैं, वो 2 मिनट की मैगी 10 मिनट में बनाता है, तो अगली क्लास में सो जाती है। हम्म, फिर घूमते घूमते आते हैं हम लोग, फिर 2 क्लास और अटेंड करते हैं, फिर वो 2 बज जाता है, फिर वहां पे कॉलेज में हमेशा कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा so चल रहा होता है। I'll ask you a very interesting question, Piyush. A very interesting question. मेरे को तेरी बातें सुनते सुनते दिमाग में आया। जब 2 साल we were doing our preparation alongside 12th, ठीक है, we reached a rank of 419। पिछले 6 महीने में we did our preparation alongside NLIU। Obviously, वो 2 साल में ज्यादा टाइम होता होगा, it would have been much much easier for somebody to crack the examination versus to do it in the last 6 months along with NLIU, because mid sems भी होंगे, सेम्स भी होंगे, फ्रेंड्स भी होते हैं, रूममेट्स भी होते हैं, हॉस्टल भी होता है, you have a life to live there as well। मतलब है, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं, और then you are away from your family as well। तो when the going got tougher, what got you going? मतलब तो तेरी रैंक इज ऑलमोस्ट 2% ऑफ योर प्रीवियस रैंक। सर दैट्स तो स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग, पर तो ये हुआ कैसे? आई अगर डोंट ये जब ज्यादा चीजें टफ हो गई, तो व्हाट कंस्पायर्ड और व्हाट इंस्पायर्ड यू, या क्या हुआ अल्टीमेटली? हाउ वर व्हाई वर यू, इनफैक्ट हाउ तो मैं बाद में पूछूंगा, व्हाट व्हाई वर यू एबल टू परफॉर्म इन दिस ईयर्स एग्जामिनेशन? सर लाइक आफ्टर द लास्ट ईयर पेपर, मुझे याद है मैंने मतलब पेपर देने के बाद ही डिसाइड कर लिया था कि ये वैसा नहीं किया जैसा जाना चाहिए था। हम्म। तो क्योंकि वो 90 मिनट से मिला था उधर मेरे को, तो वो हमेशा थोड़ा सा पर्सनल ग्रज रह जाता है ना कि थोड़ा यार पूरा तो मिलता टाइम, तो बात होती बराबर की। तो फिर वो उसी पे मतलब पूरा मुझे बस ये था कि एक बार पूरा पेपर जाके दे देना है कंप्लीट, और अच्छे से दे देना, पूरा 2 आवर मिले मेरे को, मेरी प्रिपरेशन पूरी हो और हो जाए बस। तो दिस पूरा फुल टाइम मैं यही था इसी पे Piyush, कि एक बार बस जाके देना। I know a lot of students this year जिनकी expectations result कम आया, मतलब they were deserving, deserve भी करते थे, they should have gotten a lot more marks than they finally got। they will be getting into a first year college। मैं तुमको बोल रहा हूँ भाई फर्स्ट ईयर में एडमिशन लो, एंड लुकिंग एट योर स्टोरी आई एम टेलिंग देम, जो जो अभी तक मुझसे कनेक्ट हुआ, कि यार एडमिशन ले लो, ठीक है, उसके बाद फिर प्रिपरेशन कर लेना, कि तो मतलब बहुत सारा प्रिपेयर करने का कुछ रहा नहीं है, एज एन यू जस्ट नीड टू राइट टेस्ट एवरी, सो लेट्स से 3-4 टेस्ट इन अ वीक, यही तो मैं अगले 6 महीने करो। What would be your suggestion to them? I mean, is it how easy or how difficult it is to prepare along with college? सर लाइक यू सेड सर, मतलब इन द कॉलेज सर देयर लॉट ऑफ थिंग्स टू डू, मतलब एक तो हॉस्टल लाइफ हो जाती है, एक बार वो कॉलेज की हवा लग जाती है ना, तो फिर वो मजा नहीं आता करने में, तो हाँ, दोस्त बन जाते हैं, फिर घूमना पसंद है उनके साथ, आपकी फिर थोड़ा। आप आप उसी एनवायरनमेंट पे रहते हो, तो आपकी कितनी बार आपकी एस्पिरेशंस भी लो हो जाती हैं थोड़ी। हाँ, जब आप देखते हो कि पूरे क्राउड में ही कोई नहीं कर रहा, तुम अकेले खड़े हो गए दोबारा तो मैं जाना है। प्लस हाँ। फिर अगर उस पर वो बहुत डिपेंड करता है, लाइक कॉलेज ज्वाइन करना है कर लो, एक काइंड ऑफ सिक्योरिटी होता है, पर दैट डिपेंड्स कि वहां पे तुम्हें ग्रुप कैसा मिलेगा वो वाला। हम्म। तो अगर वो लोग थोड़े ऐसे हैं कि क्यों जा रहे हैं हमें छोड़ के, तो फिर वो लोग इतना प्रमोट नहीं करेंगे जाओ। और कुछ होते हैं कि जैसे मेरा ग्रुप था, वो चाहते थे कि मैं जाऊं, कि मैं तो आगे जाऊं, वो नहीं जा पाया लेकिन मैं जरूर जाऊं उनकी तरफ से। हाँ। तो वो अभी एनएलआई में बहुत खुश हैं जो लोग अभी हैं मेरे साथ वाले, वो पार्टी में कि तू तो आप पार्टी करेंगे मतलब वैसा। तो तो वो हाँ। डिपेंड्स कि एक काइंड ऑफ भी थोड़ा गैम्बल हो जाता है कि वो डिपेंड करते हैं कॉलेज कैसे जा रहे हो, वहां पे लोग कैसे मिलेंगे तुम्हें, और तुम खुद को कितना वहां पे मेंटेन कर पाओगे। तो So अपने आप को विद ऑल द एक्टिविटीज गोइंग ऑन इनसाइड अ कॉलेज, अपने आप को डिस्ट्रैक्टेड तूने, मतलब हाउ इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट टू, फ्रेशर्स चल रही है तो आज रात की पार्टी यहाँ हो रही है, तो कोई और पार्टी हो रही है, तो हॉस्टल के रूम, तू उन सबसे खुद को डिस्ट्रैक्टेड, आई मीन वो डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करने के लिए, आई मीन कितनी, आई एम मैं श्योर तेरे को बहुत ज्यादा एनर्जी लग जाती होगी यार, इट वुड हैव बीन अ लॉट, आई नहीं मीन नहीं आई सर, रिमेम्बर, मैं तू ये बोलता था ना कि अब सर मैं, आप तो यहाँ पे प्रिंट आउट निकाल के रखो मॉक्स का, मैं आऊंगा, मैं संडे को आके हाँ लेके जाऊंगा, मतलब वो कहाँ से पूरी एनर्जी आती थी कि यू काइंड ऑफ ट्रैवल, कम हियर, टेक इट, बिकॉज कॉन्सेप्चुअली तो अपन तेरी 2 साल की पूरी क्लासेस के बाद तो सॉल्व भी था, मतलब वहां तो कोई दिक्कत ही नहीं, बट इतनी एनर्जी कैसे आती थी?
इतने सर सारे नहीं थी ना, डिस्ट्रैक्शंस के बीच मैं में। हाँ। नहीं सर, वो इतनी थी नहीं, मैंने इतना वो डिस्ट्रैक्शन अवॉइड ही नहीं किया, सब किया मैंने सर, प्रेशर भी करी हाँ। सर, पार्टी में भी सब गया मैं। वो तो हाँ। मतलब सब किया, वो अवॉइड होता नहीं है सर वो, हो ही मतलब नहीं सकता तुम्हारा अवॉइड। पूरा हाँ। विंग खाली है सर, वो पार्टी हो रही है पूरे विंग में और तुम ऐसे खाली बैठ के रूम में मौज दे रहे हो, ऐसे थोड़े चल पाएगा वो। हाँ। हाँ। तो तो मैंने किया, सब किया, मतलब वो हाँ। तो इन द एंड बस मतलब मालूम चाहिए कि तुम्हें करना क्या है लॉन्ग टर्म में वहां, मतलब ये होता है तो कोई भी ऐसे जाके वहां से अवॉइड हो नहीं सकता कि तुम्हारा खुद प्रैक्टिकली सोचिए, 200 लोग हैं, 200 199 एक जगह, तुम एक जगह हो, एक जगह हाउ हो, इज इट पॉसिबल कि तुम चले जाओगे, नहीं वो कर नहीं पाओगे। होता है कभी। सो आर यू ट्राइंग टू से पीयूष कि सर मेरा जो पहला एक्सपीरियंस ऑफ एक्चुअल क्लैट हुआ, जहां मैंने बैठ के जो मेरे उससे जो मेरी लर्निंग्स हुई और जो मैं सीखा, शायद अगर नेक्स्ट डे क्लैट फिर से हो जाता तो मेरी रैंक यही आ जाती जो मेरी आज हुई है। हाँ हाँ आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर दो 6 मंथ्स की जो मैंने 90 मिनट्स या 2 घंटे में जो गलती करी है, अब वो मेरी गलती वापस से नहीं होगी। आई वाज काइंड ऑफ वेरी श्योर आई न्यू हाउ टू मैनेज दोस 2 आवर्स और हाउ टू, मतलब बस वो जो 2 घंटे कैसे निकालने, आई गॉट इट ओनली वाया एक्सपीरियंसिंग द फाइनल डे। सर ट्रू, मतलब आई बिल्कुल एग्री करता हूँ उस वाली स्टेटमेंट से कि हम्म। वो 2 आवर्स का एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा मेन होता है कि आपके लिए इनफेक्ट कितना भी आप मॉक्स लिख लो, कितने भी सेंटर पे लिख लो, एआईएम लिख लो आप, लेकिन इन द एंड वो जो 2 घंटे वो जब इन्विजिलेटर तुम्हारे सामने आके खड़ा होगा, 2 बार डिस्टर्ब करेगा, हाँ। तब तक वो वाला एक्सपीरियंस नहीं होता है, तब तक फिर नहीं वो आप में नहीं डेवलप हो पाता कि कैसे होना है उस टाइम पे। और प्लस वो जब बेल बजती है वो लेना शुरू करता है आगे से, और हाँ। तुम्हारे 3 OMR बचे हैं, अब तुम उसमें गलत भरोगे सही भरोगे, वो उस टाइम पे आपको पता होना चाहिए कि आप क्या करोगे, जब तक वो नहीं आ रहा तब तक टाइम तो पूरा है आपका, तो वो नहीं पता चलता, लोग मतलब उस टाइम पे पैनिक हो जाते हैं, तो वो बहुत ऑब्वियस भी है, फर्स्ट ह्यूमन इंस्टिंक्ट होता है वो पैनिक होना है इस टाइम पे। तो जब तक वो एक बार एक्सपीरियंस नहीं हो जाए तब तक आई गेस इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल दैट काइंड ऑफ बट प्रेशर अगेन। फॉर मी पीयूष यू हैव बीन वन ऑफ द मोस्ट, क्या बोलना चाहिए, आई एम जस्ट सर्चिंग फॉर अ राइट वर्ड, बट वेरी डिटर्मिन्ड, आई थिंक एक्सट्रीमली डिटर्मिन्ड कि मुझे करना ही है। आई रिमेम्बर तो डे वन से क्लियर था कि मुझे यही करना है। फिर सर क्लैट वो 22 के रिजल्ट के डे यू आर वेरी क्लियर, उस दिन तेरे सारे फ्रेंड्स का रिजल्ट आया था, वी हैड दिस कॉन्वर्सेशन एट नाइट, आई रिमेम्बर यू आर वेरी क्लियर कि मुझे यही करना है। फिर तो 2 दिन मैं तो बोला यार एक काम को भोपाल आ जा, फिर तो भोपाल आया, यू आर रूम में भी इन दैट केबिन आल्सो यू आर वेरी क्लियर। नीचे नीचे पापा से भी मिले थे तो पापा वाज कंफ्यूज कि यार ये क्या कर रहा है, बट आई थिंक यू न्यू कि तुझे यही करना है। आई थिंक देयर वर लॉट ऑफ मोमेंट्स दैट यू हैड ऑलरेडी प्लान्ड इन योर माइंड कि मुझे ये मोमेंट जीने हैं और ये तभी जी पाऊंगा जब आई विल बी डूइंग दिस। हाँ, ये पहला वाला कंप्लीट होगा तब आगे जाएगा मूवमेंट। हाँ। तो हाँ। हाँ। हाँ, तो ये जब तक स्टम्बल वो कंप्लीट नहीं होता तब तक वो नहीं बढ़ रहा था आगे वो बहुत, और वो हो जाता है सर, 2 साल आप एक ही चीज को सोचो और फिर वो चीज ना मिले, तो फिर कैसे आगे बढ़ेगा कोई आगे, तो वो रहता है मन में, और बढ़ भी जाता है तो फिर हमेशा मन में रहता What are your है वो tips चीज। and what do you want to say to the 24, 25 or let's say all the aspirants that will be watching this session later? तुमको क्या बोलना चाहता है? सर स्पेसिफिकली फॉर द क्लैट, इफ समबडी इज वाचिंग, आई वुड से कि रीडिंग मत छोड़ो, मॉक्स लिखते रहो कंटिन्यूअसली, डोंट पैनिक और डोंट फंबल, और फंबल इन द एग्जामिनेशन प्रोसेस, लाइक इन द एंटायर प्रोसेस डोंट एवर फंबल, और डोंट सेल्फ डाउट एनीथिंग अबाउट यू कि किसी भी मॉक स्कोर पे कम आया ज्यादा है, किसी कोचिंग पे कम या ज्यादा है, एंड अल्टीमेटली हाँ लास्ट थिंग कि किसी कोचिंग की रैंक तुम्हारी डिटरमाइन नहीं करेगी कि कितना आ गया। मैंने जब पोस्ट प्री एनएलआई वाला पीरियड था, जब पहला अटेम्प्ट दिया था, तब मेरे बहुत रैंक्स मैंने टॉप किया था, लेकिन तब कुछ नहीं हुआ, रैंक 4199 है। इस बार मैंने किसी में कुछ टॉप नहीं किया था, लेकिन इस बार एक क्लैट में मेरी अच्छी रैंक आई। तो अगेन वो मतलब पूरा मैंने प्रोसेस में देख लिया कि टॉप वाला भी कुछ नहीं जरूरी होता है, नीचे वाला भी जरूरी नहीं होता है, इन द एंड इट मैटर्स कि वो 2 घंटे में तुमने क्या किया। हाँ और मतलब अगर उस दो पर घंटे में ऐसा नहीं कि पर आपको कंसिस्टेंटली ऊपर के 15, 20, 25 रैंक तो मारनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि तुम कोचिंग के मार्क्स उठा के 200, 300 रैंक मार रहे हो और फिर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि फाइनली अंडर 50 आ जाएगी। ऐसा नहीं, मतलब ऐसा हाँ भी नहीं होता है। हाँ फ्लक्चुएट हो सकते हैं ऑब्वियसली, लेकिन हाँ। इतना उस पे स्टिक होके नहीं रहना है कि एक रैंक भी कम हो रही है, 2 रैंक भी, और तुम उस पे बार बार सोच रहे हो कि अब तो 2 रैंक कम हो गई है, तो इससे कुछ उतना फर्क नहीं पड़ता है। हाँ। नाउ व्हाट फॉर द नेक्स्ट 5 मंथ्स? क्या एनएलआई के साथ ही रहेगा और देन मूव टू एनएलएस और क्या? हाँ, अभी सेम 2 है ना सर मेरा, 9 जनवरी से शुरू हो हाँ। रहा है, तो हाँ। जा रहा हूँ मैं दोबारा, भी 2 वीक में दोबारा पहुंच जाऊंगा भोपाल। काफी फनी होगी वो, मतलब काफी काफी इंटरेस्टिंग होगा वो कि कॉलेज में रहना और पता है कि 5-6 महीने बच्चे, बट ठीक है। हाँ, अब उधर जाके उधर आई कॉलेज थिंक में सब खुश हैं, अब न्यू उधर लाइक। नाउ यू कैन बी द हॉस्टलर फॉर द नेक्स्ट 5-6 मंथ्स, मतलब इन केस तुमने कुछ अगर मिस किया होगा शुरू के 5-6 महीने हाँ में,
अब जाके तू सबको मतलब सब कुछ चीजें मचा सकता है वहां पे कि चलो अब तो मैं हाँ चलूंगा। हाँ, अरे उधर तो मतलब पूरे कॉलेज को पता है इस टाइम तक कि मेरा हो गया है, तो लाइक उधर तो अलग ही माहौल है। हाँ। तो हम देखते हैं, मतलब उधर तो बहुत ही मजा आने वाला है नेक्स्ट टाइम तो पूरा। इट्स ग्रेट टू मैं उससे हैव मैंने इस फ्रेंड्स हु एंजॉय योर सक्सेस ना, मतलब इट्स ऑसम टू हाँ हैव इट्स फ्रेंड्स हु एंजॉय योर सक्सेस। हाँ। हाँ, मैं वही आपको कहा था स्टार्टिंग में कि बहुत लकी था कि मेरे को ऐसा क्राउड ग्रुप मिला, और जब आपने पूछा भी कि जिनको लेना है कॉलेज के साथ, तो मैंने वही कहा कि वो कंटेंजेंट है कि आप क्राउड कैसे मिलेगा वहां पे, आई तो हैव वो आल्सो बहुत बीन सक्सेस डिटरमाइन लकी इन करता दैट है। वेज कि मेरा भी कॉलेज का ग्रुप इज लाइक filthy awesome, people who enjoy your success they are like रेयर हाँ, होता दे है ऐसा। वांट कि उनका नहीं हुआ तो इसका तो होगा, ये इसी इसी की जीत में हमारी जीत हो जाएगी। हाँ। तो वो उसी में देखते हैं वो लोग। तो आई वॉज लकी कि हाँ, कि मेरे साथ मेरे जितने दोस्त थे सारे कॉलेज हाँ। के, सब सब हाँ। वही देखते थे मेरे को। तो मतलब कॉलेज में वो क्लासेस में भी अगर बंक करना है तो प्रॉक्सी लगा देंगे बीच में जाके हमारी। तो सब उधर वो अच्छे दोस्त थे उधर सब जितनी लोग उधर। हेल्प कर सकते थे सब कुछ कर दी मतलब। जो हाँ, लगता अरे था। आई रिमेम्बर मैं बूट कैंप के लिए आया था, तो मेरे प्रोजेक्ट नहीं थे, एक भी बने नहीं हुए थे। नेक्स्ट दिन वाइवा था, उन्हें सारे प्रोजेक्ट बना के मेरे सबमिट किए, और मेरी अटेंडेंस 70% से शॉर्ट हो जाती, पर उन्हें प्रॉक्सी लगाई उधर सारी। तो अगर वो प्रॉक्सी नहीं होते फेल हो जाता मैं पूरे सेमेस्टर में। तो वो सारा उनका सपोर्ट था वो पूरा उस टाइम पे। कूल यार, इट्स लाइक इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है सुन के ये सारी चीजें। उनको छोड़ के जाना टफ होगा पीयूष फिर तो। बहुत ज्यादा सर, वो तो वो हो दैट सकता है द कि ओनली 6 महीने डिसीजन। बाद बोले कि नहीं मैं एनएलआई कंटिन्यू कर रहा हूँ, मैं नहीं जा रहा एनएलएस सर अब। सब पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन हाँ इट्स स्टिल ऑन द कार्ड्स। स्टिल ऑन द कार्ड्स। सो तो यार व्हाई यू वांटेड टू डू पीयूष लॉ एज अ ग्रेजुएशन, आई मीन कहाँ से ये, व्हाई लॉ एज अ ग्रेजुएशन? सर इंजीनियरिंग पसंद नहीं थी, और ड्राइंग खराब थी, तो मेडिकल भी हट गया। और पैसे गिनने में गलतियां हो जाती थी, तो कॉमर्स भी हटा दिया पापा ने। तो फिर मैंने कहा यही बच्चा है, इस पे देखते हैं अपन कुछ। कुछ ऐसा तो कोई बहुत, इट वाज मोर बाय द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन एंड नॉट बाय। हाँ, कि ये भी नहीं हो पा रहा है, ये भी नहीं हो पा रहा है, ये भी नहीं हो पा रहा है, तो ये कर लेते हैं, इस पे कुछ तो कर लेंगे अपन। सो यू वांट, सो यू अल्टीमेटली वांट टू बिकम अ लॉयर, या अभी भी जस्ट काइंड ऑफ फिगरिंग इट आउट कि क्या करना है अभी, मतलब लॉ तो कर लेता हूँ एज अ मतलब सर, ग्रेजुएशन फिर समझूंगा क्या करना है। हाँ सर, यही वाला सीन है। मतलब 5 साल बड़ी प्रोसेस हो जाती है, यू गेट बड़ी टू प्रोसेस एक्सपीरियंस हाँ, मैनी थिंग्स। हाँ, लंबा तो ग्रेजुएशन उस है। हिसाब से जैसे डेवलप होता है इंटरेस्ट किसी चीज में, तो फिर उसको एक्सप्लोर करेंगे हम्म। कि, और वो लगती है अपने काइंड ऑफ थिंग, तो ज्यादा बढ़ेंगे उसमें आगे। नहीं यार ऑसम पीयूष, आई एम एक्सट्रीमली, मतलब खैर यू ऑलरेडी नो इट, आई हैव टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स, extremely happy for what you have achieved. Matlab, especially knowing the, I mean, being a part of the complete story as an fantastic. And I'm sure you'll be inspiring a lot of students in kind of years to come. ठीक है। आई होप सो। नहीं नहीं, डेफिनेटली डेफिनेटली 100%। ठीक है। चल पीयूष, थैंक यू सो मच। आजा झांसी से वापस नेक्स्ट मंथ, अब जब भी आएगा तो फिर मिलते हैं, है ना? हाँ सर, जरूर। चल बाय बाय, सी यू, टेक केयर, या बाय बाय। अरे थैंक यू एक चीज सर। और पीयूष, सोशल मीडिया, यहाँ पे मैंने मतलब, डिड यू अवॉइड सोशल मीडिया? सर मैं कभी हुई नहीं सोशल मीडिया पे, नो टेलीग्राम फेसबुक, मतलब नो इंस्टाग्राम फेसबुक, बट टेलीग्राम पे था। और व्हाट्सएप व्हाट्सएप कॉलेज के रिलेटेड होता है, टेलीग्राम थोड़ा क्लाइंट रिलेटेड, तो बस उसी पे। बाकी तो अकाउंट नहीं है मेरा किसी पे भी। तू भी मेरे जैसा ही है, मतलब मेरा भी इंस्टाग्राम पे अकाउंट नहीं है, मेरा भी लिंक्डइन पे भी अकाउंट नहीं है, मेरा ट्विटर पे भी अकाउंट नहीं है, बट हाँ लोग बोल रहे हैं खोल लो, हम सोचता हूँ शायद अब ओपन करूँ अब। हाँ, मैं भी वही सर, कि वो बोलते हैं कि कुछ तो काम आएगा तुम्हारा, कुछ कर तो लो काम आएगा, तो। मेरे को बोले इंस्टाग्राम खोलो करण, क्या मतलब तुम्हारे पास करण लिंक्डइन भी नहीं है यार, तो तुम्हारे पास तो लिंक्डइन होना चाहिए। भाई करते हैं यार अब, ठीक है अब देखेंगे क्या होगा। हाँ अभी करेक्ट सर, दुनिया वैसे ही ऐसी मेरा भी इंडी है। है। ठीक है यार चलो, थैंक्स अलॉट पीयूष, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर यहाँ पे पार्टी करते हैं। देर आर बिल्कुल बेटर, बिल्कुल। देर कैन बी बेटर वेज टू पार्टी एज वेल नाउ, चलते हैं मिलके फिर। ऑफ कोर्स सर, ऑल द बेस्ट टू द पार्टी। चल मिलते हैं फिर, मिलके पार्टी करेंगे।